सर, अब तक हम ब्रह्मांड के ऊपर कई वीडियोस देख चुके हैं। हाँ, बहुत बारी। आज एक वीडियो नजर के सामने आई जिसका टाइटल था ब्रह्मांड अनंत है, अच्छा जी, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा जी। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए, आप इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। साहब सही बात तो यही है कि ये बात तो मेरे को कहना पड़े कि वाकई में ब्रह्मांड वाकई में अनंत है कि उसका कोई अंत नहीं। एक जब हमने वीडियो दे दी कि हाँ उसमें हाँ, धरती को ऐसा भरा है जैसे कोई राई का दाना याद है मुझे, हाँ, अच्छी तरह याद है। वो वीडियो देखी मैंने, आज भी दिमाग में मेरे, हाँ, कि उसमें आपने बताई ना आकाश गंगा है। वो आकाश गंगा छोटी होते होते फिर एक सितारे के मानिंद जरा सी लगती है, फिर वो एक सितारा एक बड़े आकाश गंगाओं में ऐसे करते 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 हमको कहाँ पहुंचा दिया कि हमारी अपनी पृथ्वी ढूंढने में खो गए थे कि अपन कहाँ रहते हैं यार। हाँ। इतनी खतरनाक चीज थी वो जब वो धरती को देखने का बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कोई राई का वो दाना भी शायद दिख नहीं पाया आंखों से। और वो भी दिख नहीं पाया आपको जाते जाते जाते। हाँ, बहुत खतरनाक चीज थी। अब ये कौन सा आनंद दिखाया सर, लगाइए। लगाओ सब। Infinity is not merely a large number. It means to be अच्छा। truly without limit. ओ हो। The region of the universe close enough for us to observe contains over 100 billion galaxies बात है and भैया। trillions of dwarf galaxies. अरे बाप रे बाप, देख तो सही, कितना A तारा हो। dwarf galaxy typically contains आकाश several गंगा billion जिसे कहते हैं। stars. और वो के मानिंद A normal galaxy contains an average of ये क्या several आकाश गंगा में हजारों 100 सितारे billion हैं। stars. ये तो लाखों होंगे मेरे भाई। Added together, this is far more stars than all the grains of sand on Earth. सही बात है भैया यार, This is just the section of the universe that is close enough for us to observe. बिल्कुल। सही है। What if we travel beyond the region of the universe that is visible to us? बताइए बताइए। There are 3 possibilities. जी, क्या संभावना बताइए। क्या गजब की One चीज है। possibility is that we live in what we call an open universe. ओपन यूनिवर्स। वो कितना बड़ा नंबर है, गिनते गिनते थक जाएंगे पूरा रास्ता। Just as the number Oh, pi बाप रे बाप। contains an infinite number of digits without any repeating ओ बाप patterns, रे बाप। so too would the universe possess an infinite number of stars and galaxies. अबे हाथ हो गए, जो नंबर है रोड है। आनंद हो गई Another आनंद। possibility is that we live in what we call a closed universe. क्लोज यूनिवर्स। Suppose we travel along a straight path that extends without a beginning or an end. जी। If we live in a closed universe, then even if we travel along a straight path जी। without any turns, जी। it can eventually return back to where it started. ओ क्या बात। जैसे चलो वापस मंजिल उड़ाएंगे। क्या बात है। खोपड़ी घुमा दी उस्ताद तुमने तो मेरी। This is possible because objects with mass cause a curvature in space-time. जी। This is what causes the apparent force of gravity binding the moon to the Earth, Earth to the sun, and sun to the galaxy. ओहो, गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो यार। हाँ, गुरुत्वाकर्षण देखो ऐसा घूम रहा है गिर गिर के। There only appears to be a force, when in reality everything is just following straight lines. ओहो। If the density of the universe is high enough, space-time can completely curve into itself to form a closed universe. We would be analogous to Ora two-dimensional baap re baap. beings living on a sphere, able to travel ये only खाली on the surface अंदाजा खाली हो and गया। never go हाँ, inside. ये खाली अंदाजा। This sphere is expanding, and the rate of expansion is accelerating. ओहो। बढ़ते जा रहे हो, देख लो बढ़ती जा रही है।
According to Albert Einstein's theory of relativity, nothing can travel through space faster than the speed of light. ओहो, इतनी सारी रफ्तार। हाँ, रोशनी की गति। हाँ कितने फास्ट है यार। मुझे याद आया वो But the expansion of space itself causes the distance between faraway objects to increase faster than even light can travel. प्रकाश गति याद आ गया मुझे, प्रकाश गति। हाँ स्टार वॉर याद आ गया, स्टार वॉर पिक्चर देखते थे अपन। हाँ प्रकाश गति स्टार वॉर की याद दिलाती है यार। खतरनाक, जबरदस्त। ओहो हो, एक अंदाज से नापतोल कर रहे हैं ये। The farther apart two galaxies are from one another, the faster the distance between them increases. अच्छा, सिर्फ कयास है बाबू भाई। देखा तो किसी भी नहीं है भैया यार। बस हाँ, कैमरों के माध्यम से हाँ हिसाब लगाया उन्होंने। कैमरे के माध्यम से देखा किसी भी नहीं। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी, अरे बाप, इतना बड़ा ब्रह्मांड है यार। मेरे को लेके चलो बाबू भी यार। अबे वो एक टिप्पे के अंदर जाने कितनी दुनिया बसी में मेरे भाई, मतलब तू पहुंच ही नहीं पाएगा। The distance between galaxies that are extremely far apart Oh. increases faster than even the speed of light. ओहो, इससे तेज कौन जाएगा यार? फिर इससे तेज भी कोई जा सकता है क्या? This is true in both an open universe and in a closed universe. अरे बाप रे। Therefore, even if we live in a closed universe, it would Babu. still not be possible to circumnavigate the entire universe and return to where we started, as was shown. ओहो बाबू, मेरे को तो स्वर्ग की याद आ रही है इसको देख के। सच कह रहा हूँ मैं। The expansion of space is too rapid. अबे ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कैसे बढ़ेगा यार। इंसान की औकात क्या है, ऐसा कोई Though the किला में बोला। expansion of space does not increase the distance of the अरे moon बाप to the रे Earth, बाप। or the distance of the Earth to the Sun, or the distance of the Sun to the other कितनी अच्छी stars बात है। in our galaxy. और अगर दूरी कम हो गई नहीं तो 12 These भी are बच जाएगी। bound 12 together बच by जाएगी, the apparent बस ये force of है। gravity, and the expansion of space does not overcome this. अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। बिल्कुल भैया यार। Only distances that are increasing are the distances between galaxies. अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे खोपड़े घूम गई है। वो इतना खोपड़े बड़ा को- ब्रह्मांड। खोपड़ी को मत Every घुमा, ध्यान observer से in the देख। universe will see all the galaxies moving away from them as if they are at the center of बहुत अच्छी expansion. जानकारी है ये। खोपड़ी मत घुमा, अच्छा, ध्यान से देख। बढ़े जा रही संख्या, बढ़े जा रही संख्या, बढ़े जा रही संख्या, बढ़े जा रही। देख ना? This is true both in an open universe and in a closed one. अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। If the density of the universe is high enough, हाँ we live in a closed universe, and its shape is analogous to a sphere. अच्छा 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 अच्छा। A triangle drawn on the surface of this sphere will violate Euclidean geometry, in that its angles will add up to a value greater than 180 degrees. गणित के सारा फार्मूला लग गया इसमें भैया। सारी फार्मूले लग गए। हाँ मतलब देख 90 डिग्री का कोड। ये हाँ, 90 डिग्री का कोण है। हाँ यार। याद आ गया मुझे। If the density of the universe is low enough, we live in an open universe, and its shape is analogous to a saddle. अच्छा, ऐसा हो सकता है इसका आकार। ये खाली 10 मिनट एरिया हो। A triangle drawn on the surface of त्रिभुज this आकार। saddle will violate Euclidean geometry in a different way, in that its angles will add up to a value less than 180 degrees.
There is a Sure. third possibility. तीसरी मुमकिन क्या है? हाँ, देखो If the density is exactly in between that of a closed universe and that of an open universe, then we live in what we call a flat universe. अच्छा, सपाट। A बिल्कुल flat universe would still have curvature near अब the ये stars and टेबल planets, से बिल्कुल। but it would be flat in the sense that a triangle drawn on a large section of the universe would अच्छा obey Euclidean geometry and ये have its भुज- angles add up to 180 degrees. अच्छा 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 अच्छा। A flat universe, like an open universe, तो contains an infinite number of stars and planets. अनंत सितारे अनंत भैया सही ओ, है। The Earth appears flat to us when we are able to see only a tiny portion of it. सही बात है भैया यार ऊपर से देखते तो गोल दिखती है As far as the accuracy of our measurements can tell, we seem to live in a flat universe. However, this may be simply because we are able to observe only a tiny part of the entire universe. सही है। सही है भैया खोपड़ी Both a sphere and a saddle look flat when you zoom in and look at only a tiny section. सही बात है भैया Just as छोटे से को ancient देखते people फिर tried दिखता to हो discover छोटे if the Earth was round or flat, we now are trying to discover the shape of the entire universe. पूरे ब्रह्मांड का आकार जानने की कोशिश। हाँ यार अनंत है बाकी में अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं भैया सही कितने सही बोला है इसका कोई कोई अंत नहीं है वाकई में साहब ये जानकारी इतनी अच्छी मिली है हकीकत में बता दिया हालांकि वो ये सब इनके जजमेंट एक अंदाजा है लेकिन जहाँ तक मैं सब समझता हूँ कि 95% बात वाकई में हकीकत एक वाकई में ऐसा हो सकता है और ऐसे ब्रह्मांड है और ये बात तो सही है कि ब्रह्मांड एक ऐसी चीज़ है इसका कोई अंत ही नहीं। बाबू आपने 95% बोला, 5% क्यों खा गए? आपको क्या शक है इस बात में? वही गणना करी इंसान से गलती हो सकती है इसलिए आपने 5% का रखा है। हाँ बाबू भाई हाँ ये बिल्कुल खतरनाक चीज थी। आज से 2-3 साल पहले एक वीडियो देख चुका था, हाँ। उसमें आकाश गंगा दिखाई थी हाँ। और अपन इंस्टा बार भी देख चुके हैं जो हवाई सफर करा था हवाई जहाज से। करा था नहीं? और एक चीज वो दिमाग में ही हाँ। कि मुझे इन सब चीजों को देख के एक ही चीज दिमाग में बैठी कि ये बैठे बैठे मुझे स्वर्ग दिखा रहा है। अच्छा तो अच्छा कहीं ना कहीं अपन किताबों में सुनते हैं स्वर्ग इतना बड़ा होगा, हाँ। अनंत होगा, वो चीज मुझे याद आ गई क्योंकि अपन एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं जिसका मतलब कुछ अंश ही नहीं नजर है एक आकाश गंगा के अंदर ही, और रुए की तरह उड़ाया उसको, रुए की तरह ऐसा बिखेर दिया पूरे आकाश गंगाओं को। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश गंगा चीज अलग है, धरती चीज अलग है, धरती एक अंश है। अंश खाली और आकाश गंगा बहुत बड़ी है। आकाश गंगा ऐसा है उसका कोई हाँ। व्यापार ही नहीं हो रही इतनी बड़ी है कि अगर गिनने जाओ तो बहुत मुश्किल है। कितने उन्होंने भाग बोला कि यहाँ कुछ वहाँ कुछ वो जब इन्होंने गणना करी थी हाँ और वो जो संख्या दिखाई थी बराबर करके, जब संख्या बढ़ते जो रोड बना हाँ वो खत्म नहीं होने का नाम नहीं, हमें दिमाग लग गया इनके इंसान के बस की बात नहीं है। और नहीं आने है। वाले 100 साल 1000 साल बाद भी हाँ इंसान के मेरे हिसाब से बस की बात नहीं कि वो नाप सकेगा। नाप एक सकेगा। अंदाज लगा सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। बस तो अब ये बात तो तय कि ब्रह्मांड अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। और या तो मैं समझता हूँ ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो बाकी में आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह की और कोई अच्छी धुआंधार वीडियो देखे दोबारा फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।